So, good evening, all. This call is being recorded and you have to mark your attendance now. Yes, thank you so much. So, how is rain at your place? I'm experiencing heavy showering with dark clouds and thunder right now, okay? But weather is really pleasant and cool. So, are you all enjoying the rain? So, let's start today's, yes, okay. So it started at Assam also. Okay, great, good. So now let's start with today's topic. This is our session number 39. Oh, Namita madam says there is no rain in Solapur. It will come soon and then you please enjoy it. Okay, how right now how we all are enjoying. You can enjoy it soon. So now this is today's session is session number 39 and let's go further to see today's topics. Okay, we'll take some vocabulary practice, then sentences in daily use, it will be the next part, and some common phrasal verbs. Okay, so let's go for the first topic, that is vocabulary practice. As you all have requested in previous lecture that you want to practice some sentences with the pictures. Okay, so we are going to continue these things. So right now can you see the first picture? This is mountain. Is everything clearly visible to you? Please type in the chat box. I will do one thing, I will make it full screen. Yeah, so the first picture here is a mountain. माउंटन मराठीमध्ये आपण माउंटनला पर्वत म्हणतो. ओके, हिंदी में पर्वत बोला जाता है. ठीक है. सो बाय यूजिंग द गिवन वर्ड्स वी हैव टू मेक सम सेंटेंसेस. ठीक है, जैसे पिछली बार किया था हम लोगों ने, ये वर्ड आना चाहिए आपके सेंटेंस में. दिस इज द कंडीशन. ओके, तो we have only 3 people today in the class, so we'll go with them. First, Varsha madam, please switch on your mic and make some sentence using this word. Mountain looks green in rainy season. Very good, very nice. The mountain looks green in rainy season. And as I suggested you in previous class, please sit with your notebook and pen. Okay, आपकी नोटबुक और पेन लेके बैठिए ताकि आप लोग जो भी सेंटेंसेस बोलेंगे उसको आपको लिख के भी रखना है. फाइन. So next is Menuka madam. Menuka madam, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yeah, बोलिए. Madam, which one will mountain? Mountain, same. Mountain, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Uh, the mountains are full of glacier. Mountains are full of glacier. Very nice, very nice. Okay, where there is ice, Okay, ma'am. all the mountains are full There of is glaciers. Yes, very nice, madam. Now, Namita madam, Mount. Himalayan mountain range are always covered with uh, ice. Yeah, or you can say snow also, because there are small particles of ice that is called as snow. Okay, so Himalayan mountains are always covered with ice or snow. Both are preferable. Okay, thank you so much. So we will go with the same sequence. First Varsha madam, then Menuka madam, then Namita madam. Okay, तो ऐसे ही हमको एक एक वर्ड के लिए आप 3 लोग सेंटेंस बताएंगे और फिर आगे का वर्ड कंटिन्यू होगा. फाइन. सो योर नेक्स्ट वर्ड इज बर्ड. मेनका मैडम, नहीं, वर्षा मैडम, बर्ड.
Birds lay eggs. वेरी गुड. बर्ड्स ले एग्स मतलब पंछी अंडे देते हैं, पक्षी अंडी देतात. ओके, व्हेरी नाइस. देन मेनका मॅडम. Okay, ma'am. Birds fly in the sky. Birds fly in the sky. Very good. Birds fly in Birds the sky. fly in the sky. Yes, ma'am. Very nice. ओके, पंछी आसमान में उड़ते हैं, पक्षी आकाशात उडतात. व्हेरी नाइस. देन नमिता मॅडम. Birds are flying with their wings. ओके, बर्ड्स आर फ्लाइंग विथ देअर विंग्स किंवा बर्ड्स फ्लाय देअर विथ देअर विंग्स असंही बोलू शकता, कारण ते त्यांचे पंख वापरूनच उडतात. आणि जेव्हा तुम्ही बर्ड्स आर फ्लाइंग विथ देअर विंग्स, इट इज अ आपला फक्त टेन्स चेंज झालेला आहे. वाक्य अगदी बरोबर आहे तुमचं. ओके, बर्ड्स आर फ्लाइंग विथ देअर विंग्स इज सॉरी प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. ओके, ठीक है. And now we have Pratibha madam with us. So Pratibha madam, by using word bird, you have to make the sentence. Please switch on your mic. मॅडम मी नंतर सांगू का? इथे थोडासा प्रॉब्लेम आहे नेटचा. ओके, नो नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. चालेल. हे ओके करा, ऐका आणि जेव्हा तुम्ही रेडी असाल तेव्हा फक्त मेसेज टाका. ओके, सो नाउ विल गो विथ द शिप. शिप मतलब जहाज, जो बड़ा जहाज, उसको शिप बोला जाता है. मराठीत आपण त्याला जहाज बोलतो. ओके, लिहिताना हिंदी मराठीमध्ये सेम वर्ड लिहिला जातो. उच्चार हिंदीमध्ये जहाज असा होतो, जहाज असा होतो. ओके, फाइन. तो नाव चलो अगेन द सेम सिक्वेन्स. वर्षा. Ship is used for water transport. Very good. Ship is used for water transport. Okay. Then Menuka madam. Yes, sir. Ship is a means of transportation, means of communications. It is used for the water transport, and it's also move on the water. Yes. So it is Thank you, not madam. means of not you can't say means of communication. Communication is Oh, what sorry. एक हाँ, दूसरे से yes. बात करते हैं. हाँ, it's a Okay. means of transport. Yes, madam. Transport. Yeah. Yes, Okay. means of थोड़ा transport. जम्बलिंग Yes, हो गया आपका. ma'am. No problem. The sentences are correct. Very nice. Namita madam. Okay. मॅडम मला कोणता शब्द दिलाय परत सांगा, कारण तो मुलगा Ship. बाहेर गेलेला ना. शिप. SHIP शिप म्हणजे जहाज. Merchant navy is the part of shipping. Yeah, merchant navy is the part of shipping. Will do. Very nice. Good. आता नेक्स्ट वर्ड आहे आपला गार्डन. ओके, सो वर्षा मॅडम. Children are playing in the garden. व्हेरी गुड. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. मुले गार्डन मध्ये किंवा बागेमध्ये खेळत आहेत. बच्चे बाग में खेल रहे हैं. ओके, मेनका मैडम आप बताइए. I like to gardening. टू नहीं To आएगा. garden. Is it आई right, ma'am? लाइक गार्डनिंग ऐसे आएगा. Gardening. I like gardening. Okay, गार्डनिंग. ma'am. Garden. या. हाँ. यस, I मतलब like मुझे. gardening. हाँ बोलिए. यस, मतलब मुझे I like बाग gardening. काम करना पसंद है, ऐसे. अच्छा लगता है. हाँ, यस. हाँ. वेरी गुड. Okay, ma'am. नमिता मैडम. Gardening keep our mind healthy. येस, गार्डनिंग कीप आवर माइंड हेल्दी अँड फ्रेश, हॅपी. तुम्ही कुठलेही ऍडजेक्टिव्ह जोडू शकता तिथे. ओके, व्हेरी नाईस. देन द नेक्स्ट वन इज सीझर्स. सीझर्स मतलब कैची, जी कैची कात्री म्हणतो आपण. ओके, तो सीझर्स. सो आपण लाईननेच जाणार आहोत. ओके, वर्षा मॅडम. Use scissor carefully while using. नाही, व्हाईल युझिंग
असं नाही येणार, कारण आपण ऑलरेडी यूज म्हटलंय ना त्याच्यामध्ये. मग 2 वेळा हा शब्द एकाच वाक्यामध्ये फिट नाही होत आहे. तुम्ही फक्त एवढं बोलू शकता, यूज सीझर्स केअरफुली, किंवा जर तुम्हाला व्हाईल हा शब्द वापरायचा आहे तर मग तुम्ही कटिंग वापरा. यूज सीझर्स केअरफुली व्हाईल कटिंग. ओके, ओके, हाँ बरोबर, हाँ. या हाँ. मेनका मैडम आप बोलिए. Yes, ma'am. Scissor is used for cutting cloth and for hair, etc. Yes, Scissor is yes, used for yes, cutting very good. cloth, hair, etc. Paper you can add, right? So Menuka madam's sentence was scissor is used for cutting hair, paper or cloth. Okay, very nice, fine. Namita madam. Scissor is the equipment used in the medical field by surgeon. Very nice. Scissor is the equipment used by by surgeons. Very good. Then we have the next word, that is book. बुक म्हणजे मराठीत आपण पुस्तक म्हणतो, हिंदी में किताब बोला जाता है. तो वर्षा मैडम, प्लीज टेल अस some sentences using book. I download storybook in my phone. Okay, I download storybook in my phone. मी माझ्या फोन मध्ये गोष्टींची पुस्तकं डाउनलोड करते. ओके, वेरी गुड. मेनका मैडम आप बताइए. I like to read many books from the library. Very good. I I like like to to read read many. many books from the library. Yes, ma'am. Yes, Very ma'am. nice. Very correct. Very good. Thank you. Namita madam. Encyclopedia World book is the encyclopedia book for information. किंवा तुम्ही असंही म्हणू शकता, सिंपल साधं वाक्य आपण बोलायचं असेल तर, एन्सायक्लोपीडिया इज द बुक विच प्रोव्हाइड्स लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड. आपल्याला पूर्ण जगभराची माहिती एन्सायक्लोपीडिया मध्ये मिळते, बरोबर. सो नाउ द नेक्स्ट वर्ड, टॉयज. टॉयज मतलब खिलौने. ओके, खेळणी म्हणतो आपण मराठी. सो मॅडम मी सांगू. अच्छा, तुमचं झालं नेटवर्क स्टेबल, बोला मॅडम. ओके, सीझरचं सांगते मॅडम मी. Sure, sure. Scissors are useful in many things, and scissor is useful. Scissors is also important in the kitchen. आणि Good. बुकचं one book is better than 1,000 friends. Very nice. Very good. Okay. Both are the sentences are correct. Then now we'll move towards the next word, that is toys. So Varsha madam. I bought toys for my child. Very good. I bought toys for my child. मी माझ्या मुलासाठी किंवा माझ्या बाळासाठी खेळणी आणली. Then मेनका मैडम आप बोलिए. Yes, ma'am. Toys are playing by children. Toys are playing by the children. टॉयज आर प्लेइंग नहीं बोलेंगे. चिल्ड्रन यूज टॉयज फॉर प्लेइंग. खिलौने बच्चों से Okay, खेले ma'am. जाते हैं ऐसा नहीं बोलते हम लोग. बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं ऐसा बोलते हैं, बराबर. Okay, ma'am. Okay, ma'am. या सो चिल्ड्रन प्लेज विथ टॉयज, ऐसे आप बोल सकते हो. ओके. देन नमिता मैडम. There are different toys for different age group of children. Very nice. Very good. Okay. There are different toys for different age of children. म्हणजे वेगवेगळ्या वयाच्या मुलांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारची खेळणी असतात. व्हेरी नाईस. प्रतिभा मॅडम तुम्ही बोला. Every children likes toys, and toys gives happiness to children. हा, आता एव्हरी वर्ड नाही येणार इथे. ऑल चिल्ड्रन बोलू शकता तुम्ही. एव्हरी म्हणजे आपण प्रत्येकाविषयी बोलतो, एकेकाविषयी. मग तिथे एव्हरी चाइल्ड बोलायला लागले. जर तुम्ही चिल्ड्रन वापरताय तर ऑल म्हणायचंय.
आणि जर तुम्हाला एव्हरी हा शब्द वापरायचा ऑलच्या ऐवजी, तर मग चिल्ड्रनच्या ऐवजी चाइल्ड वापरायचं. ओके, एव्हरी चाइल्ड लाईक्स टॉईज असं. क्लिअर? Yes, ma'am. Okay. So today's last word is water. Okay. Varsha madam. Water is life. Don't waste it. Very good. Water is life. Don't waste it. Very nice. मेनका मैडम आप बोलिए. Water is the main source of. Yes, ma'am. मैडम आपकी आवाज कट रही है, फिर से ट्राई करिए. Water is the main source of our life. Okay. Water is main source of life. चलेगा, नो प्रॉब्लम. ओके. नमिता मैडम आप बोलिए. Don't waste water. Water is precious for everyone. Yes, don't waste water. Water is precious for everyone. Yes, very nice. You can add there is water everywhere during this rainy season. है ना? आता पावसाळ्यामध्ये सगळीकडे तुम्हाला पाणीच पाणी दिसतं. प्रतिभा मॅडम बोला. Watermelon is the great source of water. Okay, watermelon is the great source of water. Very nice. Okay, so here we have concluded with the first topic, that was vocabulary practice. Okay, आता सेकंड टॉपिक आहे आपला आजचा, सेंटेंसेस इन डेली यूज. तो हम लोग पिछले बहुत सारे सेशंस में हम लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं. मैंने बार बार आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको शेयर किया है. हैव यू ऑल रिटन देम? क्या आप लोगों ने उसको लिख के रखा है? जरा चैट बॉक्स में लिखिए. आपने कहीं पे उसको रिकॉर्ड किया है, लिख के रखा है और उसको यूज कर रहे हो आप लोग? ओके, वर्षा मैडम का आया है, मेनका मैडम का आया है. ठीक है, तो ये इसीलिए बोला जा रहा है, ये आपको नेट पे भी इजीली मिल जाएगा, देयर इज नो इशू. बट आपके अगर नोटबुक में कुछ हैंड रिटन है, आपने खुद से लिखा हुआ, तो आप कभी भी खोल के उसको देख सकते हो. एंड देन उसको थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा कुछ सेंटेंसेस, क्योंकि वो वैसे के वैसे यूज होते हैं. ओके, एंड देन यू कैन, जब आप खुद लर्न करोगे, उन सेंटेंसेस को याद करोगे, तो उनको यूज करना और भी आसान हो जाएगा. ओके, जैसे हम लोग जब शुरुआत की थी, तब हम लोगों ने ये फिक्स किया था कि डेली 10 वर्ड्स लिखने हैं. ठीक है, अभी तो ये 39 सेशन शुरू हो गया हमारा. तो इससे पहले मतलब 39 वीक हो गए, राइट? तो 39 वीक में आपने डेली 10 करके कितने लिखे, कितने वर्ड्स बने? बहुत, एक आपकी नोटबुक भर जानी चाहिए थी. तो इज दैट हैपनिंग? क्या आप लोग ये सब कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज डू इट. ओके, इट विल बी लाइक योर ओन डिक्शनरी. आपकी खुद की एक डिक्शनरी बन जाएगी. आपके अलग अलग वर्ड्स जो है वो याद हो जाएंगे. आपकी वोकैबुलरी पावर बढ़ेगी इससे. तो ये सब चीजें हमेशा करते रहना है. ओके, देन आता आपण नेक्स्ट बघूया. ओके, मेनका मैडम का एक बार भी गया. ओके, गुड. ये जो सेंटेंसेस इन डेली यूज है, ठीक है, तो पिछले मेरे ख्याल से 3-4 क्लासेस के पहले हम लोगों ने ये कहीं बीच में छोड़ा था और फिर अलग टॉपिक्स पे चले गए थे. तो आज ये कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि सीरियल नंबर में मैंने 86 डाला है. ठीक है, तो 86 से लेकर 95 तक कुछ सेंटेंसेस दिए हैं मैंने आपको. अभी मैं आपको वो हिंदी मराठी में भी दिया है और उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है वो बताया गया है. ठीक है, तो आई विल रीड इट एंड एक्सप्लेन इट. ठीक है, बघा, मैंने 3 कॉलम बनाए हैं सेंटेंस के लिए. पहला मराठी है, दूसरा हिंदी है और तीसरा इंग्लिश है. मतलब कोई चीज हम लोग मराठी में या हिंदी में बोल रहे हैं, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये लिखा है. ओके,
तो जैसे अभी मैं पढ़णे जा रही हूँ, बघा मराठीतलं वाक्य आहे, माझं म्हणणं लक्ष देऊन ऐक. आपण बोलतो की नाही बऱ्याचदा, तुम्ही कधी मुलांशी बोलता, कधी आपल्या फ्रेंड्सशी बोलता, घरातल्यांशी बोलता, तेव्हा तुम्ही असं वाक्य वापरता की मी काय सांगतोय ते लक्ष देऊन ऐक, माझं म्हणणं लक्ष देऊन ऐक. हिंदी में उसको बोला जाता है मेरी बात ध्यान से सुनो. ओके, तो ये जो है मराठी में या हिंदी में बोला गया है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लिसन टू मी केयरफुली. क्या बोलेंगे? लिसन टू मी केयरफुली. मेरी बात ध्यान से सुनो. माझं म्हणणं लक्षपूर्वक किंवा लक्ष देऊन ऐक. लिसन टू मी केयरफुली. ओके, अभी नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, जे ही मी सांगतोय, जो कुछ मैं कह रहा हूं, और उसके आगे डॉट से देखिए दोनों मराठी और हिंदी में. तो व्हाट इज इट कि ये हाफ सेंटेंस है, उसमें और कुछ सेंटेंस आप जोड़ सकते हो. जैसे ऊपर वाला ही सेंटेंस आप जोड़ के देखिए. बघा मराठीमध्ये जे ही मी सांगतोय ते लक्ष देऊन ऐक असं बोलू शकतो की नाही आपण. हिंदी में जो कुछ मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो. मतलब ये दो सेंटेंसेस जोड़ सकते हैं, है ना. तो ये हाफ सेंटेंस है, उसको इंग्लिश में शुरुआत कैसे करेंगे? व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग लिसन केयरफुली. ऐसे आप दो सेंटेंस जोड़ सकते हो. फाइन. देन नेक्स्ट बघा, मी काय सांगतोय कळलं? मेरी बात समझ गए? यहाँ पे मैंने हिंदी में मैं क्वेश्चन मार्क देना भूल गई हूँ. ठीक है, मेरी बात समझ गए. तो मी काय सांगतोय ते कळलं असं विचारायचं असेल इंग्लिशमध्ये, तर तुम्ही काय बोलणार? गॉट माय पॉइंट. क्या बोलोगे आप? गॉट माय पॉइंट. मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक आहे, मी काय सांगतोय ते कळलं का? तर ते विचारताना गॉट माय पॉइंट असं बोलणार आपण. नेक्स्ट है, मी तुला समजावेन, मैं तुम्हें समझाऊंगा. ओके, उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. जैसे अभी आप सपोज फोन पे बात कर रहे हो किसी से और उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हम लोग बोलते हैं ना, मिलने के बाद मैं तुझे समझाऊंगा, मी तुला भेटल्यानंतर ते समजावून सांगेन काय आहे एक्झॅक्टली, है ना. तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मी तुला समजवेन. ओके, नंतर 90 नंबर बघा, मी हे कधीच विसरणार नाही, मैं यह कभी नहीं भूलूंगा. ओके, उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नेवर फॉरगेट दिस. जैसे आपके लिए किसी ने कुछ अच्छा काम कर दिया, ओके, आपकी जरूरत थी तब वो आपके काम आए, तो छोटा सा थैंक यू, थैंक यू जब हम लोग बोलते हैं वो बहुत छोटी बात हो जाती है. तो आप उनको ऐसे हमेशा बोल सकते हो ना कि मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा जो आपने मेरे लिए किया है. बोलतो ना आपण की मी तुम्ही जे माझ्यासाठी केलंय ते मी कधीच विसरणार नाही. तर मग त्याला इंग्लिश मध्ये काय बोलणार आपण? आय विल नेवर फॉरगेट दिस, मैं यह कभी नहीं भूलूंगा या भूलूंगी. ओके, देन 91 है, मला एक प्रश्न विचारू दे, मुझे एक सवाल पूछने दो. ओके, जैसे आपको अगर कोई सवाल पूछना है मुझसे तो आप चैट बॉक्स में ये लिख सकते हैं, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. ओके, मुझे एक सवाल पूछना है, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. ओके, नंतर काय चाललंय, क्या चल रहा है, उसको बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन. जैसे सपोज आपके फैमिली मेंबर्स बैठे हैं कहीं बाहर, आप लोग हॉल में बैठे हो सब लोग, आप कहीं से आए, तो हम लोग ऐसे पूछते हैं ना घर में क्या चल रहा है. ओके, आप सब लोग क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है. मराठीत आपण बोलतो ना काय चाललंय, तर दॅट इज इंग्लिश मध्ये बोलायचंय व्हाट्स गोइंग ऑन. ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन. 93 है, मुद्द्यावर ये, मुद्दे पर आओ. मतलब कोई भी चीज कोई बहुत बड़ा चढ़ा के एक्सप्लेन कर रहा है तो उसको एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो पूछना है आपको कि भाई जो एक सही बात है वही बताओ, बाकी सब बातें मत करो. तो हम लोग बोलते हैं मुद्दे पे आओ. मराठीत बोलतो आपण मुद्द्यावर ये. ओके, तो इंग्लिश में उसको बोला जाता है कम टू द पॉइंट. क्या बोला जाता है?
come to the point. Okay, then वेळ वाया न घालवता, हिंदी में बिना समय बर्बाद किए. ठीक है, मतलब सपोज आपने किसी को कुछ काम बोला है, आपके घर में ही छोटे बच्चे हैं वगैरह, उनको आपने कुछ काम बोला है और आपने बोला है की ये जल्दी खत्म करना है. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला ते दिलेलं काम आहे ते वेळेत खूप लवकर पटापट पूर्ण करायचंय. तुम्ही बोलता की नाही, वेळ वाया न घालवता हे काम उरकून घे, बिना समय बर्बाद किए अपना काम पूरा करो, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग. तो ये जो पहला सेंटेंस है, बिना समय बर्बाद किए किंवा वेळ वाया न घालवता, उसको इंग्लिश में बोला जाता है विदाउट वेस्टिंग युअर टाइम. ओके, विदाउट वेस्टिंग युअर टाइम. देन लास्ट सेंटेंस है यहाँ पे, मला पूर्ण करू दे, मुझे पूरा करने दो. जैसे अभी दो लोग बात कर रहे हैं, सपोज दो या दो से ज्यादा लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, और सपोज एक अभी जैसे मैं बोल रही हूँ और कोई बीच में और दूसरा बोलने लगा, तो मैं बोलूंगी ना, पहले मुझे कंप्लीट करने दो, मुझे पूरा करने दो, बाद में आप बोलो. ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, म्हणजे पहिले मला पूर्ण करू दे, मग माझ्यानंतर तू बोल. बरोबर आहे. मग हे जे आधीचं वाक्य आहे तुमचं, मला पूर्ण करू दे किंवा मुझे पूरा करने दो, उसको बोलेंगे लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. क्या बोलेंगे? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. ओके, सो हियर पार्ट ऑफ, मतलब कुछ हम लोगों ने 10 सेंटेंसेस लिए हैं यहाँ पे, तो ये 10 सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं. मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? माझा आवाज येतोय का व्यवस्थित? ओके, ग्रेट, गुड. अब आप सब ये सेंटेंसेस जो है वो एक बार ध्यान दीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए ये सेंटेंसेस. बताइए, ये सभी सेंटेंसेस आपको पता थे ना? तुम्हाला हे सगळे सेंटेंसेस माहिती होते की नाही सांगा मला, चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. येस येस, एग्जैक्टली. हेच म्हणायचंय, मुझे यही कहना है कि ये सभी सेंटेंसेस हमें पता है लेकिन हम यूज नहीं करते. हम मतलब आप लोग इसको यूज ही नहीं करते. सभी पता है. मैं आपने पहले शुरुआत से भी देखा है कि मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ, इट्स इन वेरी इजी वे. ठीक है, ताकि आप सबको इजीली समझ में आए. और जैसे आप देख रहे हो, ये सभी सेंटेंसेस बहुत ही इजी है और आप लोग उसको अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकते हो. सिर्फ किस चीज की जरूरत है? प्रैक्टिस. ओके, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है. मैं आपको नया कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ. कुछ चीजें हम लोगों ने बीच में पढ़ी होंगी शायद, जो आपको नहीं भी पता होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी ही है जो आप सबको पता है. ओनली थिंग इज हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? ब्रश अप कर रहे हैं. आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं ये सेंटेंसेस होते हैं. जैसे आपको अगर पढ़ने का शौक है, आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो, या जैसे मैंने बोला था, कुछ अच्छे अच्छे इंग्लिश मूवीज देखना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको वो लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या कॉन्वर्स कर रहे हैं, वो एक बार कान पे पढ़ने लगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अच्छा, इसको ये उसको ये बोलना चाहता है. मराठीमध्ये तुम्ही ट्रान्सलेट करू शकता स्वतः की अच्छा, आता हा जो डायलॉग बोलला गेला त्याचा हा अर्थ होता. बरोबर आहे. या सगळ्या गोष्टी माहिती असतात, फक्त आपण करत नाही आहोत, दॅट इज प्रॉब्लेम. सो यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग्स. ध्यान में रखना है. ओके, मेनका मैडम ने लिखा है, आई एम ऑलवेज यूजिंग विथ माय फ्रेंड्स स्टूडेंट. वेरी गुड मैडम, यही यही करना है आपको. जो भी आपके आसपास अच्छे लोग हैं, जो आपसे, आप अगर ऐसे बात कर रहे हो तो आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं अच्छे से, तो इट विल हेल्प यू टू ग्रो. ओके, आपकी इंग्लिश सुधारने में आपको भी मदद होगी, उनको भी तो मदद होगी. अगर वो आपसे ऐसे बात कर रहे तो आपको जो आता है वो आप उनको बता सकते हो, उनको जो आता है वो आपको बताएंगे. इसी तरह से आप एक दूसरे की हेल्प करके ये लैंग्वेज और अच्छे से सीख सकते हो. ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक.
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फ्रेजल वर्ब्स। ओके, तो कॉमन फ्रेजल वर्ब्स में आज हमने लिया है कुछ फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं और यहाँ पे भी देखिए 3 कॉलम से फ्रेजल वर्ब है, नेक्स्ट उसका मीनिंग है और फिर उसका सेंटेंस लिखा गया है। ओके, मतलब उस फ्रेजल वर्ब को यूज कैसे करना है वो भी मैंने लिखा है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है आपको याद है सबको? हम लोगों ने ये थर्ड पार्ट चल रहा है अभी फ्रेजल वर्ब का। तो फ्रेजल वर्ब इज व्हाट, मैंने जैसे पहले आपको बताया था, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सम एक्शन दैट इज वर्ब एंड आपके प्रेपोजिशंस। ओके, तो प्रेपोजिशन और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। एक नया वर्ड तैयार कर देते हैं लोग। अभी ये फ्रेज क्यों है? क्योंकि वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, हैंग भी है, अप है, मतलब 2 वर्ड्स एक साथ आए, कहीं कहीं पे 3 वर्ड एक साथ है, 4 वर्ड्स एक साथ है, तो उससे फ्रेज बनती है। ओके, तो इसीलिए उनको बोला जाता है फ्रेजल वर्ब्स। फाइन, तो पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा हैंग अप। ओके, ये है हैंग अप। हैंग अप का मीनिंग लिखा है देखिए, टू एंड अ फोन कॉल, मतलब हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं और अचानक से बंद कर दिया उसको, तो उसको बोला जाता है हँग। ओके, फोनवर बोलता बोलता तुम्ही त्याला कट केला तर त्याला हँग अप म्हणतात। मग आता सेंटेन्स बघा कसं बनवलंय मी, शी हँग्ड अप इन द मिडल ऑफ द टॉक। म्हणजेच काय, शी हँग्ड अप इन द मिडल ऑफ द टॉक, मतलब उसने बात के बीच में ही, मतलब हम लोग जब बात कर रहे थे तो बीच में ही उसने फोन काट दिया। हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, या रख दिया। ओके, मराठीत आपण काय बोलणार की संभाषणाच्या मध्येच तिने फोन ठेवला किंवा फोन बंद केला। ओके, तो ये जो बीच में कट करना है उसको बोलेंगे हैंग्ड अप। क्या बोलेंगे? हैंग्ड अप। फोन कट कर दिया उसको हैंग अप बोलेंगे। फाइन, आणि तुम्हाला मैं आपको जब पूरा मीनिंग बता रही हूँ, सेंटेंस बता रही हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो भी लिखिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक्सप्लेन करती जाऊंगी और आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके, आपको यस या नो लिखना ही है जब मैं पूरा एक वर्ब, उसका मीनिंग और सेंटेंस कंप्लीट कर देती हूँ। ओके, so we'll go for the next one, that is hold on। अभी ये भी आपको पता है, hold on, to wait for a short time, मतलब कुछ देर के लिए किसी को आपने रुकने के लिए बोला तो हम लोग बोलते हैं प्लीज होल्ड ऑन। ठीक है, एक थोडा वेळ तुम्ही जर कोणाला थांबायला सांगितलं तुम्ही बोलता प्लीज होल्ड ऑन। अगदी फोनवर पण बोलता की नहीं तुम्ही? हम लोग फोन पर भी ऐसे बोलते हैं होल्ड ऑन, मतलब थोड़ा रुकिए। आप जैसे सपोज एक सिचुएशन लेते हैं, हाँ, आपको कोई फोन आया है और वो आपको किसी और का नंबर दे रहे हैं या किसी आपसे किसी का नंबर पूछ रहे हैं, तो वो देखने के लिए आपको थोड़ा उनको रुकाना पड़ेगा ना, नंबर लिखने के लिए या उनको देने के लिए, ढूंढने के लिए, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? होल्ड ऑन। ओके, प्लीज होल्ड ऑन। फाइन, देन क्या ये समझ में आया आपको? गुड, ग्रेट। अभी देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, कीप समथिंग अप। कीप समथिंग अप वो है टू कंटिन्यू एट द सेम रेट, मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखना है। ओके, त्याला सतत चालू ठेवायचं आहे, जसं करताय तसं। तो उसको, जैसे आपने हमेशा देखा होगा कि पहले आप लोग जब होमवर्क डालते थे ग्रुप पे, तो मैं वहां पे कीप इट अप लिख के आपको रिप्लाई करती थी, याद है आपको? तो ये वही है, कीप समथिंग अप इज टू कंटिन्यू एट द सेम रेट। कीप अप, मैंने सेंटेंस लिखा है देखिए, कीप अप द गुड वर्क, मतलब आप जो अच्छा काम कर रहे हो उसको
ऐसे ही शुरू रखिए, असंच चालू ठेवा सतत. ओके, तो कीप अप द गुड वर्क. कीप इट अप बोल सकते हो. मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, बाकी लोग भी लिखिए, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, माझा आवाज नहीं होता है. नहीं नहीं. ओके, तो मेनका मैडम शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम आपके यहाँ पे है. एक बार आप एक काम कर सकते हो, आप मीटिंग लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन हो जाइए. ओके, आणि आमच्याकडे आता खूपच जास्त आभाळ भरून आलंय, पाऊस पण चालू झालेला आहे जोरदार. तर कदाचित माझ्या नेटवर्कचाही मध्ये प्रॉब्लेम होईल. तर असं काही जाणवलं तर प्लीज तुम्ही मला नोटिफाय करा. ओके, लेट्स कंटिन्यू. यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस है लेट समवन इन. लेट समवन इन इज अ सिंपल, तुम्हाला दिसते तसंच मीनिंग आहे की कोणाला आत घ्यायचं आहे वगैरे. तर लेट समवन इन, टू परमिट टू एंटर, मतलब अंदर आने की परमिशन देना. ओके, टू परमिट टू एंटर. बघा इथे वाक्य बनवलंय साधं, प्लीज लेट हिम इन. ठीक आहे, त्याला कृपया आत घ्या. प्लीज लेट हिम इन. तुम्ही हे ऑफिसमध्ये वापरू शकता, शाळेमध्ये वापरू शकता, घरात वापरू शकता असे शब्द, अशी वाक्य. ओके, प्लीज लेट हिम इन. नेक्स्ट आहे लुक फॉर समवन. मीनिंग आहे टू ट्राय टू फाइंड, मतलब व्हाट, किसी को ढूंढना, वस्तू किंवा एखाद्या व्यक्तीला शोधण्यासाठी फ्रेजल वर्ब का आहे लुक फॉर समवन. जर व्यक्तीसाठी वापरत असाल तर लुक फॉर समवन, आणि एखाद्या वस्तूसाठी वापरत असाल तर लुक फॉर समथिंग. ओके, किसी व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं तो लुक फॉर समवन, और किसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं तो लुक फॉर समथिंग. ओके, तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया, देखिए, आई एम लुकिंग फॉर मीना, म्हणजेच काय, मी मीनाला शोधत आहे. आई एम लुकिंग फॉर मीना, मैं मीना को ढूंढ रही हूँ. अगर आपने यही यहाँ पे किसी चीज का नाम डाल दिया, जैसे आई एम लुकिंग फॉर माय स्पेक्स. ओके, मैं अपने चष्मे ढूंढ रही हूँ, मी माझा चष्मा शोधत आहे. आय एम लुकिंग फॉर माय पेन, मी माझा पेन शोधत आहे. आय एम लुकिंग फॉर माय नोटबुक, माय बुक, एनिथिंग. ही गोष्ट शोधत आहात तर त्याच्यासाठी तुम्हाला हे वाक्य वापरायचंय, आय एम लुकिंग फॉर, आणि पुढे त्या वस्तूचं नाव. ओके, क्लिअर? आतापर्यंतचं सगळं समजलंय सगळ्यांना? जरा एकदा लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. मॅम, येस मॅम. लुकिंग फॉर तर फॉर वापरावाच लागणार का आपल्याला प्रत्येक हो हो स्टेटमेंट हो मध्ये? हो हो हो, वापरावाच लागणार, कारण ह्या लुकिंग फॉर इज द फ्रेजल वर्ब, म्हणजे हे कॉम्बिनेशन आहे, ही फ्रेजच आहे. लुक फॉर, लुकिंग फॉर. ओके, ओके तुम्हाला ओके कंपल्सरी वापरायचंच आहे फॉर. ओके, ठीक आहे. मग आपण आता पुढच्या वाक्यात जाऊया. टू यूज, एक मिनिट हा, मला जरा मेसेज वाचू द्या. लावडे मॅडमचा मेसेज आहे, टू यूज करतो ना, नाही. आता इथे बघा, लुक ॲट असतं, लुक टू असतं, लुक फॉर असतं, आणि त्याच्यानुसार त्यांचे मीनिंग्स बदलत जातात. ओके, तर लुक टू पण वापरला जाऊ शकतो, लुक ॲट पण वापरला जाऊ शकतो, लुक फॉर पण वापरला जाऊ शकतो, पण प्रत्येकाचं मीनिंग वेगळं आहे. आता इथे आपण कुठल्या मीनिंगने घेतलंय, टू ट्राय टू फाइंड, शोधणे. मग शोधण्यासाठी आपण लुक फॉरच वापरणार. ओके वर्षा मॅडम, क्लिअर? येस, गुड. आता आपण जाऊया पुढच्या सेंटेन्सला. लुक इनटू समथिंग. ओके, बघा आता लुक इनटू आलं. लुक इनटू समथिंग म्हणजे टू इन्व्हेस्टिगेट. आता इन्व्हेस्टिगेटचा अर्थ काय? इन्व्हेस्टिगेट म्हणजे शोध लावणे, एखाद्या गोष्टीचा शोध घेणे. वरचं शोधणे आणि हा शोध घेणे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, लक्षात ठेवायचंय. ओके, इथे ट्राय टू फाइंड म्हणजे एखादी गोष्ट शोधायची आहे, हरवली आहे वगैरे, आणि इन्व्हेस्टिगेट इज रिलेटेड टू क्राईम. पोलीस, डिटेक्टिव्ह हे जेव्हा एखाद्या केसवर काम करतात तेव्हा त्याला इन्व्हेस्टिगेशन म्हणतात. ओके,
मग हे इन्व्हेस्टिगेट म्हणजे काय? टू लुक इन टू समथिंग म्हणजे टू इन्व्हेस्टिगेट. ओके, एखाद्या केस बद्दल किंवा एखाद्या क्राईम बद्दल जर काही शोध चालू आहे तर त्याला आपण टू इन्व्हेस्टिगेट म्हणतो. तर आता इथे मी वाक्य बनवलंय बघा. द डिटेक्टिव्ह विल लुक इन टू दिस केस. ओके, म्हणजे डिटेक्टिव्ह जे आहेत ते काय करतील, ही जी केस आहे या केसचा छडा लावतील किंवा हिंदी में बोलेंगे कि जो डिटेक्टिव है वो इस केस के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे. ओके, तो दैट इज टू इन्वेस्टिगेट. और उसका फ्रेजल वर्ब क्या है? लुक इनटू. ओके, लुक इनटू समथिंग. देन इस स्लाइड का लास्ट वर्ड है मेक समथिंग अप. मेक समथिंग अप मतलब क्या? टू लाई अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में झूठ बोलना. ओके, एखाद्या गोष्टीबद्दल खोटं बोलणे त्याला म्हणतात मेक समथिंग अप. वाक्य बघा कसं, ही इज मेकिंग अप अबाउट यस्टरडे. म्हणजे आता कोणीतरी सांगतंय की एखादी तिसरी व्यक्ती आहे, तो त्याच्या कालची जी काही गोष्ट सांगतोय ती तिच्याबद्दल खोटच बोलतोय तो. ओके, ही इज मेकिंग अप अबाउट यस्टरडे. तो कालच्याबद्दल खोटं बोलतोय. वो कल के लिए झूठ बोल रहा है, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. मग आपण बोलतो ना की सारवा सराव करतोय किंवा हा काहीतरी वेगळ्या गोष्टी बनवतो आपण. तर दॅट इज टू मेक समथिंग अप. ओके, म्हणजे खोटं बोलणे, एखाद्या गोष्टीबद्दल खोटं बोलणे. ओके, ही पूर्ण स्लाइड समजली आहे का सगळ्यांना? लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. क्या सबको समझ में आया ये पूरा स्लाइड? ग्रेट. तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे. ओके, मिक्स समथिंग अप. नेक्स्ट स्लाइड पे पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है मिक्स समथिंग अप. इसका मीनिंग क्या है? टू गेट कन्फ्युज्ड. म्हणजे आपण बोलतो ना गोंधळणे, गोंधळ घालणे किंवा काहीतरी बऱ्याचशा गोष्टी एकत्र करून गोंधळात पडणे. तर दॅट इज टू गेट कन्फ्यूज, मतलब मिक्स समथिंग अप. ठीक आहे, प्लीज डोंट मिक्स अप द थिंग्स. आता बऱ्याचशा लोकांना सवय असते की टू द पॉइंट न बोलता थोडं इकडचं थोडं तिकडचं अशा बऱ्याचशा गोष्टी मिक्स करून सांगतात, एकत्र करून सांगतात. सगळी सरमिसळ असते आणि जो मेन पॉइंट असतो तो बाजूलाच राहतो, म्हणजे सगळा गोंधळ होतो थोडक्यात. ठीक आहे, तो दॅट इज कॉल्ड मिक्स समथिंग अप, म्हणजे टू गेट कन्फ्यूज, गोंधळ उडणे. मग इथे वाक्य लिहिलंय प्लीज डोंट मिक्स अप द थिंग्स. कृपया गोंधळ घालू नको या गोष्टींबद्दल, असं बोलायचंय. ओके, सेकंड वर्ड आहे या स्लाइड वरचा पास अवे. पास अवे मतलब टू डाई, मतलब मरना. हिंदी में बोलेंगे मरना, मराठीत बोलणार आपण मरणे. ओके, हिज अंकल पास्ड अवे लास्ट वीक. त्याचे काका मागच्या आठवड्यात वारले. ओके, म्हणजे मराठीत आपण वारणे हा शब्द पण बोलतो की नाही, तो त्याचे काका मागच्या आठवड्यात वारले मराठीमध्ये. और हिंदी में बोलेंगे उनके चाचा पिछले सप्ताह मर गए. ओके, या उनका निधन हो गया, ऐसे बोलेंगे. तो उसके लिए डाई से बेहतर वर्ड है पास अवे. ओके, तो पास अवे यूज कर सकते हैं हम लोग. हिज अंकल पास्ड अवे लास्ट वीक. फाइन, आगे चलते हैं. थर्ड वर्ड है अपना पे समवन बैक. पे समवन बैक. ओके, उसका देखिए मीनिंग टू रिटर्न द ओल्ड मनी. ठीक है, मतलब आपने किसी से पैसा लिया है उसको रिटर्न देना, दैट इज पे समवन बैक. यहाँ पे सेंटेंस देखिए, हरीश पेड बैक हिज लोन. हरीश ने कुछ लोन लिया था, कर्जा लिया था, उसको उसने वापस दे दिया, म्हणजे परत देणे. थोडक्यात पे समवन बॅक म्हणजे परत देणे. ओके, सो हरीश पेड बॅक हिज लोन. हरीशने कर्जा वापस किया. हरीशने जे कर्ज घेतलेलं ते त्याने परत केला. नेक्स्ट है
पुट समथिंग ऑफ, हम लोगों ने पुट ऑफ का पहले भी देखा था, जैसे कुछ बंद करना है तो हम लोग पुट ऑफ यूज करते हैं। यहाँ पे पुट ऑफ का और एक मीनिंग आया है, टू पोस्टपोन। ओके, टू पोस्टपोन मतलब जैसे हम लोग लेक्चर पोस्टपोन कर दिया उस दिन, वेनसडे को हो नहीं पाया तो वो लेक्चर हम लोगों ने पोस्टपोन करके आज रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस बनाया है वैसे, वी विल पुट ऑफ टूडेज मीटिंग, मतलब आज कैंसल, कभी तो अगली बार होगी। ठीक है, तो उसको बोल देंगे पुट ऑफ। आज हम लोग नहीं कर सकते, उसको हम लोग आगे कभी तो करेंगे, तो वो है पुट ऑफ। ओके, वी विल पुट ऑफ टूडेज मीटिंग। देन रन अवे, रन अवे म्हणजे काय, पळून जाणे। ओके, रन अवे मतलब भाग जाना। टू लीव अनएक्सपेक्टेडली और टू एस्केप। अनएक्सपेक्टेडली मतलब क्या, कि किसी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा फिर भी वो हो गया, तो वो है अनएक्सपेक्टेडली। ठीक आहे, और टू एस्केप म्हणजे पळून जाणे। बघा काय आहे, निसटणे म्हणतो ना आपण मराठीत, ते पण होऊ शकतं। टू एस्केप म्हणजे निसटणे। शी रॅन अवे फ्रॉम द विकेड मॅन, मराठीत आपण काय बोलणार या वाक्याला, की त्या वाईट माणसापासून ती पळून गेली, की त्या वाईट माणसाकडून ती पळून गेली। ओके, किंवा तिने तिची सुटका करून घेतली, ती निसटली, त्या वाईट माणसापासून, वाईट माणसाकडून ती निसटली। हिंदी में बोलेंगे उस बुरे आदमी से वो भाग गई। ओके, लास्ट है सेंड समथिंग बैक। अभी सेंड समथिंग बैक म्हणजे टू रिटर्न। ओके, ऊपर जो है पे समवन बैक, तो पे इज रिलेटेड टू मनी, राइट। और ये जो सेंड है वर्ड, सेंड मतलब भेजना। ओके, पाठवणे, काहीतरी परत पाठवणे, टू रिटर्न, परत पाठवणे, वापस भेजना। ओके, सेंड समथिंग बैक। देखिए, आई विल सेंड बैक दीज बॉक्सेस टुमारो। क्या सेंटेंस बनाया है मैंने, आई विल सेंड बैक दीज बॉक्सेस टुमारो। मी हे जे बॉक्सेस आहेत ते उद्या परत करेन। ओके, ये जो बॉक्सेस है वो मैं कल वापस कर दूंगा। बॉक्सेसला आपण मराठीत काय म्हणतो, खोके। ओके, तो हे खोके मी उद्या परत करेन। फाइन, तर मला आता सांगा, आत्ताची ही जी स्लाइड आहे त्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का, समजलंय का तुम्हाला? येस और नो लिहा, किंवा डाऊट असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये लिहा प्लीज। अच्छा, हेलो नो मैडम। डाउट, हेलो बोलिए मैडम। मैडम। मैडम यहाँ पे क्या बोलिए। बोलते हैं, मेरा ये चैट बॉक्स में लिख रहा है मैडम, नॉट गोइंग मैम, इट इज नॉट ठीक है, सेंडिंग, या तो मीन्स इफ आई एम यू हैव राइटिंग एनी टाइपिंग बट डाउट, yes नो ma'am, it is प्रॉब्लम, नो clear that प्रॉब्लम। या ओके I ओके, आई गॉट efforts योर I पॉइंट। Yes, yes, I got your okay point that you want ma'am, to say it is कि you understood, yeah, you understood everything, but typing is not possible, correct? yes ma'am, yes ma'am, Yes, thank you I so am much, typing but madam. it is Due, yeah, due to network issue it happens, okay? So don't bother. Everything is available in video. So whenever you need it, please text me. I will make the video available on group so that everyone can see the video, and whatever missed part is there you can take care of it। जैसे सुषमा मैडम, okay स्वाति ma'am, मैडम थोड़े लेट हुए हैं, तो उनके लिए पहले वाला पार्ट मिल जाएगा, आपका भी जो मिसिंग पार्ट था वो आपको मिल जाएगा। ओके, सो आई फॉरगेट दैट, सो एवरीबडी, ओके, ये काम के बीच में मैं थोड़ा भूल जाती हूँ वो वीडियो शेयर करना, तो प्लीज रिमाइंड मी, आप ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हो। ओनली थिंग इज, जब क्लास होता है उसके 2 दिन बाद वीडियो अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि कोई और सर होते हैं जो उसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो अपलोडिंग में थोड़ा टाइम जाता है वीडियो अपलोड करने के लिए यूट्यूब पे, तो 2 दिन बाद आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाता है। ओके, और पहले ही मैंने आपको जो मेन लिंक है क्लास की वही शेयर की थी आपके साथ, तो डायरेक्टली उस लिंक पे भी अगर आप जाते हो
तो अभी तक के सभी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट क्लास से ले अभी तक के Yes, ma'am. सभी I वीडियोस have आपको मिल got all. जाएंगे। ये वेरी गुड, तो यू कैन वॉच Yes, ma'am. देम। ओके, Earlier videos I have got, ma'am. Okay, ma'am. very nice, very nice, very nice. So now everybody, we are closing today's session here. Thank you so much. Thank you for kind listening, and please 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 practice. Okay, आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, so now I will take your leave. Thank you so much. Good night everyone, and please take care of Thank you, yourself. ma'am. Thank you, madam. Welcome. Yes, thank you so much. Good night. You Modika all, madam. you all Madam, can leave the class now. madam. Hello. Madam, I have the मॅडम ते another मोनिका lecture. मॅडम ना विचारा कशा Madam, I have another lecture. You ओके ओके can बाय message. मॅडम बाय Yeah, मॅडम yes. Bye बाय bye. Thank you. Bye bye. बाय